ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਪੰਜਾਬ ਮਿਲ USA ਟੀਵੀ ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਹੋਸਟ ਤੇ ਦੋਸਤ ਸੁਰਭੀ ਸ਼ਰਮਾ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਅਪਡੇਟ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਾਂਗੀ ਜੀ USA ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਖਾਸ ਅਪਡੇਟਸ ਜੋ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਈਰਾਨ ਅਮਰੀਕਾ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਜੰਗ ਦੀ ਵੀ ਜੁੜੀ ਹੋਏਗੀ। ਹੋਰਮੁਜ਼ ਜਲਡਬਰੂ ਮੱਧ ਮਾਰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੋ ਤਣਾਅ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸ ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਰ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਅੱਜ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਅਪਡੇਟ ਤੋਂ ਜੋ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸਖਤੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਸਖਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਇੱਕ ਖਿੱਤੇ ਦਾ ਬੰਦਾ ਮੈਂ ਕਹਿ ਲਾ ਜਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀ ਕਹਿ ਲਾ ਇਸ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਪ੍ਰਵਾਸੀ। ਔਰ ਹੁਣ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਮੁਸੀਬਤ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਡਰ ਅਤੇ ਚਿੰਤਾ ਹੈ ਡਿਪੋਰਟ ਹੋਣ ਦੀ, ਚਾਹੇ ਉਹਨਾਂ को ग्रीन कार्ड है चाहे नहीं है, लेकिन डिपोर्ट होने की चिंता इस ਵੇਲੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ 'ਚ ਹੈ। ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਤੇ ਪੈ ਰਿਹਾ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਕੁਝ ਖਾਸ ਫੀਲਡ ਵਿੱਚ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੁਝ ਖਾਸ ਕਿੱਤਿਆਂ 'ਤੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਐਸੇ ਵਿਭਾਗ ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਕਮੀ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਅਮਰੀਕੀਆਂ ਨੂੰ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਖਾਸ ਜਿਹੜੇ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਉਹ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨੇ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਹੁਨਰਮੰਦ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਦੀ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਸਾਂਭਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੀ ਸਖਤੀ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਹੁਣ ਕਮੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਢਿੱਲ ਇਸ ਵਿੱਚ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੀਤੀਆਂ 'ਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੋੜ ਆਇਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਸਖਤ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸੰਬੰਧੀ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਚੁੱਪਚਾਪ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜੀ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਪ੍ਰਾਪਤ ਡਾਕਟਰਾਂ ਲਈ ਵੀਜ਼ਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਅਰਜ਼ੀਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਹ ਤਬਦੀਲੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਫ ਹੋਮਲੈਂਡ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਲਗਾਈ ਗਈ ਵਿਆਪਕ ਟਰੈਵਲ ਪਾਬੰਦੀ 'ਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਪਾਬੰਦੀ ਕਾਰਨ 39 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਵੀਜ਼ਾ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ, ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਅਤੇ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲਗਭਗ ਰੁਕ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਜਦੋਂ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, 2 ਫੈਡਰਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਫੈਡਰਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਸਖਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਉਹ ਨਾਗਰਿਕ ਅਫਗਾਨ ਨਾਗਰਿਕ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵੱਲੋਂ ਗੋਲੀ ਚਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਦੀ ਘਟਨਾ ਕਰਕੇ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ 39 ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬੈਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇੱਥੇ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਐਸੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ ਜੋ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਡਾਕਟਰ, ਨਰਸ ਹੋ ਗਏ ਜਾਂ ਫਿਰ ਬਾਕੀ ਸਭ ਲੋਕ ਜੋ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਪਰ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਤੇ ਇਹ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕਮੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਪਰ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਚੁੱਪਚਾਪ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਰੁਕ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵੀਜ਼ਾ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਸੀ, ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਸੀ, ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਸੀ, ਸਭ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰੁਕ ਗਈ ਸੀ। ਬਟ ਹੁਣ ਇਹ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਹ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਵਾਂ ਕਿ 16 ਦਸੰਬਰ 2025 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਪ੍ਰੋਕਲੇਮੇਸ਼ਨਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1 ਜਨਵਰੀ 2026 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਲਾਗੂ 19 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਾਲੀ ਸੂਚੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਯਾਨੀ 19 ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੈਨ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਸ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ 39 ਦੇਸ਼ ਹੋਰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲਏ ਗਏ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜੋ ਲੋਕ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਦੇਸ਼ ਛੱਡਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀਜ਼ਾ ਅਤੇ ਸਟੇਟਸ ਅਪਡੇਟ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਅਣਮਿਆਦੀ ਸਮੇਂ ਲਈ ਅਟਕ ਗਈਆਂ। ਹੁਣ USCIS ਨੇ ਆਪਣੀ ਗਾਈਡਲਾਈਨ ਅਪਡੇਟ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਡਾਕਟਰਾਂ ਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਸੰਬੰਧੀ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਹੁਕਮ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਡਾਕਟਰਾਂ ਲਈ ਅਮਰੀਕੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਅਤੇ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀਜ਼ਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਜਾਂ ਰੀਨਿਊ ਕਰਨ ਦਾ ਰਾਹ ਮੁੜ ਖੁੱਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਡੀਕਲ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਰੋਕ ਨੂੰ ਲਗਾਉਣਾ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੰਭੀਰ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਖੇਤਰ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੁਝ ਪੇਂਡੂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਮੀਆਂ ਦੀ ਮਹਿਸੂਸ ਦੇ ਕਰਕੇ
करके ही यानी कि जो ट्रंप प्रशासन के कोल शिकायत पहुंचती है, एक खबर पूछती है कि बहुत सारे ऐसे पेंडू इलाके ने जिथे हुण डॉक्टर की कमी हो रही है, क्लीनिकल डिपार्टमेंट के विच कोई भी ऐसा सेहत विभाग नाल जुड़िया कर्मचारी नहीं है जो लोगों की देखभाल कर सके। दैन डोनाल्ड ट्रंप के वालों एक बड़ा ते अहम फैसला लिया गया, जिस करके हुण जिहड़े भी उत्थे डॉक्टर मौजूद ने जिन्हां ने रीन्यू करवाना या फिर कुछ विदेशी डॉक्टर जो अमेरिका आना चाहते हैं वो भी आ सकते हैं। उन्होंने वीज़ा प्रक्रिया च कोई भी रुकावट जिहड़ी नहीं आएगी। रिपोर्टां के मुताबिक लगभग 25% लाइसेंसशुदा डॉक्टर विदेशी ट्रेनिंग वाले हैं। इस तो इलावा 64% ऐसे डॉक्टर पिंडां जां अजिहे इलाकिਆਂ ਵਿੱਚ सेवा दे रहे हैं जिथे डॉक्टरों की कमी बहुत ज़्यादा है। इसी करके हुण इस फैसले करके यानी कि पहला जी पाबंदी लगाई गई सी, इस विच कमी जी सी होर भी ज़्यादा हो गई सी। मैडिकल संगठनों ने चेतावनी दी सी कि जे वीज़ा प्रक्रिया लंबे समय लिए रुकी रही तो इस नाल सेहत सेवावां ते भारी दबाव पै सकता है, खास करके पिंडां अते घट आमदनी वाले इलाकिਆਂ विच। सो अंदाजा है कि लगभग 2.1 करोड़ अमरीकी अजिहियां कम्यूनिटियां विच रहिंदे हन जिथे विदेशी डॉक्टरां की भूमिका बहुत ही ज़्यादा इंपोर्टेंट है। इस ताज़ा फैसले नाल सेहत खेतर नूं कुछ हद तक राहत मिलण की उम्मीद जताई जा रही है, पर वड्डी इमीग्रेशन नीति च अनिश्चितता हाले भी कायम है और इमीग्रेशन दे विच बाकी जो पाबंदियां उसी तरीके नाल जारी रहणगियां, उस विच कोई भी छूट नहीं दी गई है। सो डोनाल्ड ट्रंप दे वल्लों एक होर नवा ते अहम फैसला लिया गया है। एक नवा नियम का ऐलान जिहड़ा है कीता गया है। फिलहाल ये लागू नहीं होया, बट जे अगर ये नवा प्रस्तावित नियम लागू हो जाता है तो बहुत सारे लोगों की एक चिंता का विषय बन सकता है। जी हाँ, अमेरिका च राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की नीति नाल जुड़िया एक नवा प्रस्तावित नियम लखां गरीब परिवारां लई वड्डी चिंता का कारण बन गया है। इस नियम के लागू होने दे नाल लगभग 3.7 मिलियन लोग अपनी रेंटल सहायता गवा सकते हैं, जिस विच बहुत सारे बच्चे भी शामिल हैं। नवी पॉलिसी के अनुसार जे मैं नवी पॉलिसी की गल करदी हां तो इस विच घर किराए दे लई मिल रही सरकारी मदद ते 2 साल की सीमा यानी टाइम लिमिट लगाई जा सकती है अते नाल ही हफ्ते के 40 घंटे काम करने की शर्त भी लागू हो सकती है। जे कोई व्यक्ति यह शर्तां पूरियां नहीं करता यानी 40 घंटे काम नहीं करता या बाकी शर्तां पूरा नहीं करता तो उसनूं जो सहायता दी जाती है गवर्नमेंट वालों उसों वांझा हो सकता है, वो सहायता नहीं मिलेगी। इत्थे माहर ये कहते हैं कि इस नाल कई लोग जिहड़े पहला ही काम कर रहे हैं पर पूरे घंटे नहीं कर सकते, उन्होंने बहुत मुश्किल आ सकती है, वो भी इस विच प्रभावित जिहड़े हो सकते हैं। इस तो इलावा गल करा कागजी कार्रवाई अते सख्त नियमां दी ते कागजी कार्रवाई ते सख्त नियम कारण वो लोग भी सहायता गवा सकते हैं जो हकीकत विच योग हैं। इस नीति के तहत कुछ छोटा भी दित्तियां गईयां ने, जिवें कि बजुर्ग हो गए, अपाहज व्यक्ति हो गए या छोटे बच्चे के मापे हो गए, उन्होंने इस तो वांझे रखा गया यानी उन्होंने दे उत्ते कोई इसका प्रभाव नहीं पेगा, लेकिन जो बाकी लोग हैं उन्होंने इसका प्रभाव पै सकता है। माहर इत्थे भी कहते हैं कि असल विच कई लोग ये छूट लैण के बावजूद भी सिस्टम की जटिलता कारण बाहर हो सकते हैं। इस नाल ही होर प्रस्तावां विच रेंट सहायता विच कटौती अते कुछ परिवार खास करके जिन्हां विच इमीग्रेशन स्टेटस मिक्स है उन्हां लई सहायता खत्म करन दे भी इशारे मिले हैं, जिस नाल हज़ारां परिवारां नूं घर छड्डना पै सकता है। आलोचकों का यह कहना है कि यह नियम लोगों को स्वै निर्भर बनाने की बजाय उन्होंने बेघरता वाल तक सकता है, जबकि सरकार का दलील है कि इस नाल हाउसिंग सिस्टम विच नवे लोगों लिए जगह बनेगी। पर दूसरे पासे ये कहा जा रहा है कि इस नाल लोगों को मुश्किलों का सामना करना पेगा। इस वेले ये नियम अजे फाइनल नहीं है अते इसते कानूनी चुनौतियां भी आ सकदियां ने अते जायज़ है कि कानूनी चुनौती आएगी क्योंकि बहुत सारे लोग इस नाल प्रभावित होणगे अते बहुत सारे लोगों ने अपना घर छड्डना पै सकता है जो नहीं छड्डना चाहते। इस करके कानूनी चुनौतियों का सामना सरकार नूं करना पै सकता है। ये नियम कुछ लोगों लिए हद तक सही हो सकता है पर कुछ लोगों लिए बिल्कुल भी सही नहीं हो सकता। पर जे ये लागू हो जाता है तो अमेरिका विच हाउसिंग संकट होर भी गंभीर हो सकता है तो उन्होंने लोगों का सुपना ही रह सकता है जो अमेरिका विच घर लेना चाहते हैं या फिर अपने घर सुपने वाला घर बनाना चाहते हैं। सो उन्होंने लिए सुपना होर भी ज़्यादा मतलब मुश्किल हो सकता पूरा करना। फिलहाल अमेरिका विच वैसे महंगाई बहुत ज़्यादा है और इमीग्रेशन के सिस्टम में सख्त करते करते अमेरिका विच होर भी ऐसे बहुत सारे नियम ने जिन्होंने बदलिया जा रहा है, सख्त किया जा रहा है, जिस विच रेंटल हाउसिंग सिस्टम भी शामिल है। बट ये लागू नहीं होया, इसके फाइनल होने तो बाद ही पता चलेगा कि आखिर फिर कई हालात जिहड़े निकल के सामने आते हैं। हुण गल करदी हां जी मैं उन्हां लोकां दी जिन्हां ने टैक्स भरिया होया है और उन्हां दे लिए एक बहुत ही बड़ी खबर सामने आई है।
टैक्स रिलेटेड खबर ये सामने आई है कि जिन्होंने लोगों ने टैक्स भरिया सी उन्होंने टैक्स वापस मिल सकता है, रिफंड वापस मिल सकता है। बट खास गल ये है रिफंड वापस उदों का मिलेगा जो कोविड-19 सीगा, यानी कि कोविड-19 दौरान जिन्होंने लोगों ने टैक्स भरे सीगे या फाइन दिता सी, यानी ब्याज दिता सीगा और इस तो उपर कोई भी लेट फी लगी सी, फाइन लगा सी, और सारे वापस हो सकते हैं। पर इसकी एक तरीक है, उसनूं ध्यान विच रखना बहुत ज़्यादा जरूरी है। सो अमेरिका विच कोविड-19 दौर दे नाल जुड़ी एक वड्डी टैक्स खबर सामने आई है, जिस विच ये कहा जा रहा है कि ਲੱਖਾਂ नहीं बल्कि करोड़ों टैक्स पेयर्स नूं IRS ਵੱਲੋਂ दिते गए जुर्माने ਅਤੇ ਵਿਆਜ ਦੇ पैसे वापस मिल सकते हैं। ਇਹ मामला एक अदालती फैसले तो बाद सामने आया, जिस विच ये कहा गया कि कोरोना महामारी दौरान यानी कि जनवरी 2020 जो कोरोना शुरू होया सी उस तो लैके मई 2023 तक टैक्स दीयां म्यादां अपने आप वध जाणियां चाहीदियां सन। इसका मतलब यह है कि जिन्हां लोकां ने उस समय दौरान लेट फाइलिंग की, लेट फीस या ब्याज के रूप विच पैसे भरे सन, ਉਹ ਹੁਣ ਰਿਫੰਡ ਲਈ ਯੋਗ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। इस रिफंड ਨੂੰ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੋਵਿਡ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਟੈਕਸ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਭਰੇ ਸਨ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ IRS ਨੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਜਾਂ ਵਿਆਜ ਲਾਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹ ਜੁਰਮਾਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੋ ਪੈਸੇ ਨੇ ਹੁਣ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਬਟ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਉਹ ਪੈਸੇ ਦੀ ਜੋ ਡੇਟ ਹੈ ਉਹ ਨਾ ਨਿਕਲ ਜਾਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਡੈਡਲਾਈਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਰੀਬ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੌਕਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਅਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੱਕ ਸਭ ਲਈ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਰਿਫੰਡ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ, ਇਹ ਰਿਫੰਡ ਟੈਕਸ ਪੇਅਰਸ ਨੂੰ ਖੁਦ ਕਲੇਮ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਟੈਕਸ ਭਰਿਆ ਹੈ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਲੇਮ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੈਕਸ ਭਰਿਆ ਸੀ ਔਰ ਇੰਨੀ ਲੇਟ ਫੀਸ ਸੀਗੀ, ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਟੋਟਲ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਭਰੇ ਸੀ, ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਕਿਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੈਕਸ ਦੀ ਜੋ ਅਦਾਇਗੀ ਹੈ ਉਹ ਰਿਫੰਡ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। सो इसलिए एक आखिरी तरीक है और 10 जुलाई 2026 है। 10 जुलाई 2026 तो बाद तुहानूं रिफंड नहीं मिलेगा। इस तो पहला अपने रिफंड लिए क्लेम किया जा सकता है। जे मिति मिस हो गई है तो रिफंड का हक तुहाडा खत्म हो जाएगा। इस रिफंड नूं क्लेम करन लई IRS का फार्म 843 भरना पवेगा ਅਤੇ इस नूं डाक राही भेजना पवेगा, ऑनलाइन तुसीं नहीं भेज सकते। एक टैक्स पेयर अटार्नी ने कहा है कि बहुत सारे लोगों नूं इस बारे पता ही नहीं है, जिस कारण वो अपने हक के पैसे गवा सकते हैं। कोरोना दौर के टैक्स फैसले कारण ये एक बड़ा मौका है जिस नाल कई लोगों को बड़े रिफंड मिल सकते हैं। पर इसलिए समय ते कार्रवाई करनी बहुत जरूरी है, इसलिए उन्होंने लोगों को ध्यान देने की बहुत जरूरत है जिन्होंने अपने टैक्स भरे सी, यानी कि जिन्होंने कोविड-19 दौरान कोई भी फाइन दिता सी, टैक्स नूं लैके लेट फी जमा की सी, नाल टैक्स भी जमा किया सी, वो इस फार्म नूं भर के अपना रिफंड हासिल कर सकते हैं। सो हुण गल कर लैंदे हां जी अमेरिका ਅਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਈਰਾਨ ਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤਾਜ਼ਾ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ। ਜੀ ਹਾਂ, ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਈਰਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਣਾਅ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਹੁਣ ਹੋਰ ਵੱਧ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਲਡਮਰੂ ਹੋਰਮੁਜ਼ ਜਲਡਮਰੂ ਮਾਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਤਣਾਅ ਵੱਧ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਵੱਲੋਂ ਈਰਾਨ ਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਮਲਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਥਿਤੀ ਬਹੁਤ ਨਾਜ਼ੁਕ ਹੈ। ਹੋਰਮੁਜ਼ ਦੀ ਖਾੜੀ ਜਿੱਥੋਂ ਦੁਨੀਆ ਦਾ 20% ਤੇਲ ਲੰਘਦਾ ਹੈ लगभग बंद हो चुकिया होया और इत्थे लगातार अमेरिका दे वल्लों भी एक नाकाबंदी की गई है और हुण प्रोजैक्ट फ्रीडम शुरू कर दिता गया है। प्रोजैक्ट फ्रीडम का मतलब यह है कि हुण जोड़ा भी जहाज़ उतों लंघेगा उसनूं सुरक्षा जिहड़ा है अमेरिका प्रदान करेगा। ईरान दूसरे पासे कह रहा है कि उत्थे बिना इजाजत यानी कि ईरान की इजाजत तो बिना कोई भी जहाज़ नहीं लंघ सकता। ट्रंप प्रशासन ने अमरीकी जल सेना नूं खुली छोड़ दी है कि वह खाड़ी विच फसे वपारक जहाज़ां नूं सुरक्षित कट्टा। अमेरिका ने ईरान दियां 7 हमलावर किश्तियां नूं तबाह भी कर दिता है। ये अज दी एक ताज़ा खबर सामने आई है, क्योंकि एक पासे तां जिथे लगातार तनाव नूं खत्म करने की कोशिश की जा रही है, अमेरिका ईरान विच गलबात चल रही है। ट्रंप प्रशासन वालों ये कहा जा रहा है, ट्रंप के वालों ही कहा जा रहा है कि लगातार उन्होंने दे जो सहायक ने वो गलबात कर ईरान दे नाल, इस करके किसी ना किसी नतीजे ते जरूर निकलेगा। बट ये उन नतीजे ते निकलता होया नज़र नहीं आ रहा है, क्योंकि अमेरिका ने ईरान ਦੀਆਂ 7 हमलावर किश्तियां ਨੂੰ ਹੁਣ तबाह कर दिता होया, जिस करके माहौल होर भी ज़्यादा तनावपूर्ण बन गया है। तो दसा कि प्रोजैक्ट फ्रीडम इस करके शुरू किया गया क्योंकि अमेरिका ने बहुत सारे देशों ने इस गल नूं लैके रिक्वेस्ट की सी कि उन्होंने व्यापारक किश्तियां उस रास्ते तो लंघदियां ने। आप सब जानते हैं कि वो रास्ता कितना ज़्यादा इंपोर्टेंट है। 20% उत्थों जिहड़े उत्थे सप्लाई हुंदी है,
हर एक चीज़ की खास तौर पर तेल की सप्लाई हो गई तेल जिहड़ा उत्थों लंघदा होर भी ऊर्जा के भंडार जिहड़े उत्थों लंघदे ने 20% तेल दुनिया का उसके बावजूद भी उत्थे जिहड़ी है सख्ती की जा रही है ईरान दे वल्लों जहाज़ां नूं रोकिया जा रहा है इजाजत मंगण की गल की जा रही है इस नूं लैके हुण अमेरिका दे वल्लों प्रोजैक्ट फ्रीडम शुरू किया गया ताकि कोई भी वपारक जहाज़ उत्थे ना फस सके ते अमेरिका दी फौजां उन्हां नूं सही सलामत सुरक्षित ढंग नाल बाहर कढ सके पर इसी दे विचाले अमेरिका वल्लों हुण ईरान दे जहाज़ां नूं तबाह कर दिता गया हमलावर जहाज़ां नूं और दूसरी तरफ मैं गल करां UAE दे फुजेरा दी जी हाँ बंदरगाह ते होए ड्रोन हमले विच 3 भारतीय नागरिक उत्थे जख्मी हो गए हैं यह हमला होया है UAE दे फुजेरा दे विच होया हमला ठीक है इस विच एक ड्रोन हमला हो रहा है जिस विच 3 भारतीय नागरिक जख्मी होए हैं सो ये खबर जो है पंजाबी दर्शकों लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि खाड़ी देशों विच वड्डी गिनती विच पंजाबी काम करते हैं और तुसीं देखिया होगा कि दुबई दे विच तां वैसे बहुत सारे पंजाबी लोग किसी ना किसी खिते विच अलग अलग तरीके नाल काम करते आ रहे हैं और उस विच हुण हमला होया जिसकी हुण भारत सरकार ने निखेधी भी की है इस हमले नूं लैके तिन्ना जो जख्मी है उन्होंने अस्पताल विच दाखिल करवाया गया फिलहाल जिहड़ी हमले की स्थिति की गल करा तो वो बहुत ज़्यादा हुण एक तनाव वाली बन चुकी है हुण अगे की होएगा देखना होएगा क्योंकि ईरान बिल्कुल तैयारी में बैठा हुआ है ईरान ने पहला ही स्पष्ट कर दिता है कि अगर अमेरिका वालों कोई भी हमला किया जाता है तो ईरान भी चुप नहीं बैठेगा वो भी अमेरिका ते हमला करेगा इस दे नाल ये हमला अगर हो जाता है तो दोबारा तो जो महंगाई का संकट है वध सकता है तेल का संकट दोबारा पैदा हो सकता है ये आम जनजीवन बहुत ज़्यादा प्रभावित करेगा सो मध्य पूरब की गल असीं कर रहे सी जिस विच एक बार फिर तो जंग के बदल मंडराने शुरू हो चुके हैं इत्थे अमेरिका दे वल्लों जदों 7 हमलावर जहाज़ां तो तबाह किया गया तो उत्थे अमेरिका दे विच भी एक ईरान दे विच एक भयानक गोलीबारी जिहड़ी है शुरू हो चुकी है जी हाँ अमरीकी फौज और ईरान दे विचकार हुई भयानक गोलीबारी ने हुण विश्व पद्धर ते चिंता वधा दित्ती है अमरीकी फौजी अधिकारियों का यह कहना है कि यह कार्रवाई अमरीकी झंडे वाले 2 जहाज़ां नूं ईरानी हमलिਆਂ तो बचाउण दे लई कीती गई सी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि इस झड़प दौरान अमेरिका ने ईरान दियां फौजी किश्तियां नूं डुबो दिता है ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने अमेरिका के इन्हां दोषां अते हमलिਆਂ तो स्पष्ट तौर पर इनकार किया है उन्हां दे मुख्य बयान सामने आए ने जिस विच उन्होंने यह कहा है कि अरागची ने अमेरिका ते प्रोजैक्ट फ्रीडम के नाम से उकसाउण वाली कार्रवाई करने का दोष लगाया अते इस नूं प्रोजैक्ट डेडलॉक करार दिता उस अलावा उन्होंने चेतावनी दी है कि होरमुज संकट का कोई भी फौजी हल नहीं है अते किसी भी बाहरी दखलअंदाजी के नतीजे विनाशकारी होंगे उन्होंने जोर दे के कहा कि अमेरिका ते UAE नूं इस स्थिति नूं होर उलझाउण तो बचना चाहिए अते मसले नूं गलबात राही हल करना चाहिए इस दे नाल तेल संकट अते बाजार तेज दा असर साफ देखने को मिलेगा इस टकराव के कारण विश्व बाजार विच भारी उथल पुथल देखने को मिल रही है सो ब्रेंट क्रूड दियां कीमतां 5% वध के $90 प्रति बैरल तो पार हो गई ने अमरीकी शेयर बाजार की जे मैं इत्थे गल करां ते उस विच भी गिरावट आई है जिथे डाउ जोन्स 2% तक डिग गया है सो ईरान वल्लों UAE दे फुजेरा स्थित तेल प्लांटां ते मिसाइलां ते ड्रोनां दे नाल हमला करने की कोशिश भी की गई है जो मैं पहला भी दस्सिया कि जिस विच 3 भारतीय नागरिक जख्मी होए ने जिसनूं UAE दे डिफेंस सिस्टम ने हवा दे विच ही नाकाम करन दा दावा किया है सो वर्तमान विच पाकिस्तान की विचोलगी राही शांति स्थापित करने दीयां कोशिशां चल रही हैं पर खेतर विच तनाव अजे भी बरकरार है जे इसी तरीके दे नाल ये जारी रहिंदा है बरकरार रहिंदा है ते ये जंग रुकेगी नहीं बल्कि वधेगी अते बाकी दुनिया दे विच एक होर नवा संकट पैदा करेगी तेल दा संकट दा पहला तो ही चल रहा पर होर वड्डा संकट पैदा हो सकता है फिलहाल ये जो हमले हुए ने इस गल दा सबूत दे रहे हैं साफ तौर पर कि कोई भी गलबात करके राजी नहीं होना चाहता बल्कि हमलिਆਂ दे नाल एक दूसरे नूं जवाब दिता जा रहा है ईरान दे वल्लों जवाब दे दिता गया UAE नूं अते अमेरिका ने ईरान दे कुछ जिहड़े जहाज तबाह कर दिते ने हुण अगे ये देखना होवेगा कि ईरान दे वल्लों जो कहा गया कि गलबात करके इस नूं सुलझाया जाए कि गलबात हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी कि ट्रंप अपनी गल ते सहमत होणगे या नहीं होणगे सो इत्थे नाल ही गल कर लैंदी हां जी मैं वीज़ा बुलेटिन दी मई 2026 दे वीज़ा बुलेटिन की गल करनी बहुत जरूरी है क्योंकि इसका इंतजार हर बार प्रवासियों नूं हुंदा है हर महीने वीज़ा बुलेटिन जारी किया जाता है जिस विच कई बार कुछ हिलजुल होंदी कुछ चेंजिस होंदियां ने सो इस महीने यानी कि मई महीने USCIS ने चार्ट B नूं स्वीकार करना बंद कर दिता है हुण सिर्फ फाइनल एक्शन डेट्स यानी कि चार्ट A के आधार पर ग्रीन कार्ड अपलाई किए जा सकणगे जी हाँ सो हुण भारत लई चुनौती बन चुकी है AB5 यानी कि निवेश वीज़ा श्रेणी विच भारत लई
ਰਿਟਰੋਗ੍ਰੇਸ਼ਨਸ यानी कि तारीखा का पिछे जाना का खतरा बढ़ गया है। इसका मतलब है कि जिन्हों ने ਲੱਖਾਂ डॉलर निवेश किए हैं उन्होंने भी हुण लंबा इंतजार करना पै सकता है। इस नाल H1B धारकां लई नवा बिल आ चुका है। अमरीकी संसद विच पेश एंड H1B वीज़ा अब्यूज़ एक्ट चर्चा विच है। जे पास हो जाता है तो H1B वीज़ा धारकां दे जीवन साथी लई काम करना मुश्किल हो जाता है क्योंकि वो अमेरिका नहीं आ पाएगा। H1B वीज़ा ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸਖਤੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਹੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਇਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨੇ ਤੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਇਸ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਔਰ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ H1B वीज़ा ਧਾਰਕ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ। ਅਗਰ ਇਸ ਵੀਜ਼ੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਭਾਰਤੀ ਤੇ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਅਮਰੀਕੀ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਨਵਾਂ ਬਿੱਲ ਯਾਨੀ ਕਿ ਐਂਡ H1B वीज़ा अब्यूज़ एक्ट, अगर ये पास हो जाता है तो सब तो मुश्किल जीवन साथियों को आएगी। H1B वीज़ा धारकों के घरदियां नूं आएगी क्योंकि वो हुण अमेरिका विच काम नहीं कर पाएंगे, ना ही अमेरिका विच रह पाएंगे या फिर ग्रीन कार्ड हासिल कर सकेंगे। सो हुण इत्थे गल कर लैंदी मैं कच्चे तेल दी कीमतां दी। जी हाँ, कच्चे तेल की कीमत $113 प्रति बैरल तक पहुँच गई है। अमेरिका विच गैस स्टेशनों ते लंबियां लाइनां लगनियां शुरू हो चुकियां ने। विश्व बैंक ने चेतावनी दी है कि 2026 विच महंगाई 16% तक बढ़ सकती है। एक हैरानीजनक मोड़ विच वीडियो गेम कंपनी गेम स्टॉप ने $55.5 बिलियन विच ईबे नूं खरीदण दी पेशकश की है। जेकर यह सौदा हुंदा है तां ई कामर्स की दुनिया पूरी तरह बदल जाएगी। गेम स्टॉप के CEO रियान कोन ने ईबे विचों $2 बिलियन की लागत घटाउण दा वादा भी किया है। सो हुण गल कर लैंदी मैं कनेडा दी। जी कैनेडा दे विच एक पंजाबी नौजवान नूं गिरफ्तार कर लिया गया है। देखो, कैनेडा दे विच इस समय हालात बहुत खराब बने हुए ने। रोज़ कोई ना कोई ऐसी खबर सामने आउंदी ही है जिस विच अलग-अलग तरीके दी जबर वसूली दी खबरां होण, गोलीबारी दी होण, एक घटनावां लगातार हो रही ने। इसी करके पंजाबी भाईचारे विच भी एक डर वाला माहौल बनिया होया है। वो लोग एक संतुष्टि नाल नहीं रह पा रहे क्योंकि रोजाना उन्हां दे एरिया विच कोई ना कोई ऐसी गड़बड़ हो जाती है या वारदात हो जाती है जो उन्हां दी चिंता का विषय बन जाती है। इसी तरीके दे नाल कनेडा सरकार की जो पुलिस है लगातार इन्हां लोकां दे नत्थ पाउण दी कोशिश भी कर रही है और इसी दौरान एक पंजाबी नौजवान नूं गिरफ्तार किया गया। सरी दे विचों जबरन वसूली ते फिरौती गिरोह के खिलाफ कार्रवाइयां करदियां पुलिस ने पंजाबी मूल के एक 20 साल के नौजवान की फोटो जनतक की है। हुण तुसीं खुद सोचो 20 साल का नौजवान की उम्र ही कितनी है कि जिसनूं लभण वास्ते पुलिस ने दी फोटो जनतक कर दी है। 4 मई नूं जारी किए गए इस वेरवे के अनुसार इस नौजवान की पछाण प्रभजोत सिंह वजों हुई है जिस ते रैंसमवेयर ऑपरेशनां अते होर अपराधिक गतिविधियां विच शामिल होण दे दोष हैं। सरी पुलिस सर्विस के अनुसार 2026 के शुरू में इस नौजवान दीयां गतिविधियां शक के घेरे विच आईयां सन, जिस तो बाद तुरंत कार्रवाई करदियां उसनूं गिरफ्तार कर लिया गया सीगा। सो गिरफ्तारी तो बाद जदों कैनेडा बॉर्डर सर्विसेज एजेंसी ने इमीग्रेशन जांच की तां पाया गया कि प्रभजोत सिंह कैनेडा दे विच रहण दे योग ही नहीं सी, जिस कारण उसनूं देश निकाला भाव डिपोर्ट कर दिता गया है। पुलिस का यह कहना है कि पिछले कुछ सालों में ब्रिटिश कोलंबिया के लोअर मेनलैंड विच खेतर दे विच गोलीबारी अते जबरन वसूली दीयां घटनावां तेजी नाल वधियां हन, जिन्हां विच कई बार विदेशी विद्यार्थियों जां वीज़ा वाले नौजवान इन्हां गलत नैटवर्कां विच फस जाते हैं। फोटो जारी करने का मुख्य मकसद इस जांच विच होर जानकारी इकट्ठी करना है अते पुलिस ने जनता नूं अपील की है कि जेकर किसी कोल इस व्यक्ति के गुनाहां बारे होर कोई जानकारी होवे तां तुरंत रिपोर्ट करन। सरी पुलिस वर्तमान विच इन्हां गैंगस्टर नैटवर्कां नूं खत्म करने लई BC प्रोफेशनल एक्सटोर्शन टास्क फोर्स दे नाल मिल के काम कर रही है ताकि इन्हां लोकां ते नत्थ पाई जा सके ते इह घटनावां नूं या वारदातां नूं कैनेडा विच होण तों रोकिया जा सके। पिछले कुछ दिनों विच कैनेडा विच ऐसियां घटनावां होईयां ने जिथे लुट दीयां घटनावां ज़्यादा होईयां ने कि पंजाबी घर विच लुट के ही बहुत सारे लुटेरे उन्हां दे गहने वगैरह लुट के लै गए ने अते राह चलदे बहुत सारे लोकां नूं भी लुटिया जा रहा है। सो कनेडा की स्थिति इस समय बहुत खराब बनी हुई है और इसनूं लैके लगातार ऐसी खबर सामने आती रहती हैं जिस विच गिरफ्तारियां तो हो रही है, नाल डिपोर्ट जिहड़ा कीता जा रहा है। सो ऐसी होर अपडेट्स लैके मैं तुहाडी दोस्त सुरभि फिर तो हाजिर होवांगी जी। तुसीं बने रहो साडे चैनल पंजाब मेल USA TV दे नाल। इस नूं लाइक शेयर सबसक्राइब करना ना भुलना जी। तुहाडे सारिआं दा बहुत बहुत धन्नवाद।